کی دبنگ آواز اور آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب رانا لیاقت صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور مسلمان میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس زمین پر اس کائنات میں کوئی اور خدا نہیں ہے، اور جب تک میری سانس میں سانس ہے میں اپنے اساتذہ کے حقوق کی یہ جنگ لڑتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح کاشف صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ریموول دے کر بھی یہ اپنے عہدے نہیں بچا سکے، ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم جو زمین پر ظلم کر رہے ہو اسی کا تمہیں رزلٹ ملا ہے۔ تمہیں کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملا، اپنے عہدے بچانے کے لیے ہائی کورٹ میں گئے کہ ہم نے حکومت کی ہر خواہش پوری کی، وعدے بھی کیے، منتیں بھی کی کہ ہم ان 3 لوگوں کو ریموول دے دیتے ہیں، لیکن خدا را ہمیں ان عہدوں سے نہ ہٹاؤ۔ لیکن اللہ کا قانون، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا استاد، میری بہنیں اور ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ سے ہمیں ریموول دی گئی ہے، اور جن کو ہٹایا گیا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کوئی ڈی ایچ اے میں پلاٹ نہیں مانگ رہے، کوئی بلا سود قرضے نہیں مانگ رہے، کوئی گاڑیاں نہیں مانگ رہے، ہم تو صرف اپنا بڑھاپا سیکور کرنے کے لیے آپ سے لیو انکیشمنٹ مانگ رہے ہیں، جو کہ آپ نے ملازمت دیتے ہوئے مجھ سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جب تمہیں ریٹائر کیا جائے گا تو تمہاری چھٹیوں کے عوض تمہیں لیو انکیشمنٹ دے دی جائے گی۔ لیکن ان ظالموں نے لیو انکیشمنٹ پر شب خون مار کر ہمارے اساتذہ کی زندگیاں بڑھاپے کے بعد مشکل کر دی ہے۔ یہی نہیں رکے، ہماری پینشن اور گریجویٹی پر بھی کٹ لگا دیا کہ جہاں ہمیں رننگ بیسک پر پینشن ملنی تھی اب 3 سال کی ایوریج پر ملے گی، جس سے میرے ہر استاد کو 5 سے لے کر 10 لاکھ کا نقصان ہوگا، اور پینشن میں ہر ماہ 2 سے لے کے 10,000 روپے کا نقصان ہوگا۔ تو کیا اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں؟ کیا اس کو ہم خوشی سمجھ کے قبول کر لیں؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑا تو ہم بہائیں گے، لیکن اپنے جائز حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پوری دنیا میں پرائمری ایجوکیشن کوئی بھی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ کہ وہ اس ملک کی بنیاد ہے بچے، جنہوں نے کل کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کی آبیاری کرتے ہیں ان نونہالوں کی کہ کل تو وہ بڑے ہو کر اس ملک کے لیے مفید شہری بن سکیں۔ لیکن پاکستان میں ایک انوکھا قانون بنا دیا گیا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن پرائیویٹ شعبے کے حوالے کر دو۔ آپ نے ہائر ایجوکیشن کو پرائیویٹ شعبے کے حوالے کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج بچے کے پاس علم نہیں ہے، بچے کے پاس رسیدیں ہیں جو انہوں نے فیسیں ادا کی ہیں، بے روزگاری کا سمندر ہے۔ 1,30,000 ویکنسی محکمہ تعلیم میں پچھلے 6 سالوں سے خالی چلی آ رہی ہے، جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے بی ایس کر لیا ہے، ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، ہم نے ایم فل کر لیا ہے، محکمہ تعلیم میں ہمیں بطور ٹیچر ملازمت مل جائے گی، ان کی امیدوں پر آپ نے پانی پھیر دیا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟
कि आपने प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको 40 से 50 हजार हमने तनख्वाह देनी थी, अब आप इनको 6-7 हजार रुपए में अपने प्राइवेट स्कूलों में, अपने पेफ्ट स्कूलों में इनको भर्ती करें और इनका जो सुहाने ख्वाब है उनको बलिया मेट कर दें। ये कौम गुलामी की जिंदगी गुजारे, ये अपना मुस्तकबिल बेहतर ना बना सके, ये है इस कौम के खिलाफ साजिश की जा रही है। टाइम टेबल शेड्यूल की हम मुखालफत क्यों करते हैं कि हमें पहले ही एक साल में 210 दिन पढ़ाने के लिए मिलते हैं, उसके बाद आप हमें गैर तदरीसी ड्यूटियों पर भेज देते हैं, तो बच्चों का मजीद नुकसान होता है। इस टाइम और शेड्यूल से आपने तो बच्चों को 33 दिन और ऑफ कर दिया। ये कौन कहां की इंसाफ है, कहां की ये मंतक है कि आप कहते हैं कि उस्ताद हफ्ते वाले दिन 3 घंटे आए और बैठ के घर चला जाए, लेकिन ये भी आपके खिलाफ साजिश हो रही है। ये TNA जो राइज किया जा रहा है, इसमें जो मेरा उस्ताद फेल होगा, पहले तो अखबार में उसका ठट्ठा लगाया जाएगा, तो उसकी तजलील की जाएगी कि जी इतने हजारों लाखों असातिज़ा फेल हो गए। फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अब हफ्ता और एतवार, जिस दिन आपने अपने घर में, मेरी बहनों ने बेशुमार काम करने होंगे, उस दिन आपको स्कूलों में बाउंड किया जाएगा कि आप ये फिर दोबारा ट्रेनिंग हासिल करें। तो हम ऐसे निजाम को नहीं चलने देंगे, हम ऐसे निजाम को नहीं मानते। लिहाजा हमें निकलना होगा अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इन तालीमी इदारों को जो 13,000 के बाद ये देने जा रहे हैं मिडिल और हाई स्कूल। ये मत सोचें कि ये 13,000 तालीमी इदारे जाएंगे। इनका प्रोग्राम है कि हमने सिर्फ 5 या 7 हजार तालीमी इदारे रखने अपने पास और 30 से 40 हजार असातिज़ा रखने हैं। बाकी असातिज़ा को हमने गोल्डन शेक हैंड के जरिए, जिस तरह फेडरल में 5 से 8 लाख रुपया गोल्डन शेक हैंड दी जा रही है, कोई उनको पेंशन ग्रेजुएटी नहीं दी जा रही, सब कुछ एक एक्ट के जरिए उन्होंने खत्म कर दिया है। और इसी तरह जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी उसको 10 से 12 लाख गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा। अगर तो ये आपको कबूल है तो फिर आप मत निकले, अगर ये आपको कबूल नहीं तो जब ग्रैंड टीचर अलायंस टाल दे तो आप सब कुछ छोड़कर अपना घर बार भी छोड़ दें, तालीमी अदारे भी छोड़ दें और आ जाए उस जगह पर जहां पर ग्रैंड टीचर अलायंस आपको बुलाए। और आज जिस तरह आपने हार रोड पर जिस तरह इजहार यकजहती का इजहार किया है, मैं नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि यहाँ पर 13 साल से एक जमूत तारीफा काली स्याह रात थी जहां पर असातिज़ा की तस्लील की जाती थी, असातिज़ा को परेशान किया जाता था, 5 बजे तक स्कूलों में रोका जाता था। इनको मुतलबा करना चाहता हूं कि आप देख लें उनका अंजाम, वो भी नहीं रहे जो उन्होंने गैर कानूनी उनके अहकामात माने, उनकी मिन्नतें की, समाजतें की कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, मुझे इतने दिन यहाँ पर रहने दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला का इंसाफ, अल्लाह ताला का हुक्म यही था कि तुमने अपने असातिज़ा पर जुल्म किया है, लिहाजा तुम भी यहाँ से जाओ, और वो चला गया। लिहाजा मैं इन डीओस को, इन नए सीईओस को, चूंकि ये नए आए हैं, इनको वेलकम भी करते हैं और इस बात के साथ वेलकम करते हैं कि इनके दरवाजे, इनके दफातर मेरे उस्ताद की इज्जत यकीनी बनाएंगे। मेरा उस्ताद आएगा तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि साहब मीटिंग पर है, अगर वो आएगा उसको इज्जत और एहतराम से पेश आए तो हम आपका दस्ते बाजू बनेंगे। अगर आपने हमारी तजलील की, मेरे उस्ताद की तजलील की या मेरे उस्ताद को डराया धमकाया तो फिर हमारा भी काम आपके साथ वही होगा जिस तरह हम पिछले लोगों से करते थे। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गवाह बना के ये वादा करता हूं, काशिफ साहब भी वादा करते हैं कि जो इन्होंने गुल खिलाए हैं 13 सालों में, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर लाएंगे। ये आपके पास जाएंगे कि अपनी लीडरशिप को रोकें, हमारे स्याह कारनामे बाहर ना लाएं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इनसे उस्ताद की रुसवाई का, उस्ताद पे होने वाले जबर का जरूर हिसाब लेंगे और इंशाअल्लाह ताला लेंगे। हमारी राज़क अल्लाह ताला की जात है और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ से नवाजा है हम उसी हाल में खुश हैं। हमारे शायद पूरे पंजाब में 60 से 70 लोगों को सस्पेंड किया गया है, 30 से 40 लोगों को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद
पंजाब के असातिज़ा ना डरे हैं ना झुके हैं, मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर तालीम साहब कहते हैं कि 20-25% असातिज़ा स्कूलों में नहीं जाते, तो अगर स्कूलों में नहीं जाते तो फिर इन सेक्रेटरी साहबान को हटाएं, इन डीओज को हटाएं, इन डीपीएच को हटाएं कि जो इनको नहीं रोक सकते। असल में तो इन असातिज़ा का जिन जो स्कूलों में नहीं जाते उनके सरपरस्त या सेक्रेटरीट में बैठे हैं या मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं। मेरा दोस्त सुबह 8 बजे 8:45 बजे स्कूल में होता है और 2:45 बजे निकलता है। आज भी हमने इस कौम की खातर, इस कौम के बच्चों की खातर अपना एहतजाज 3 बजे के बाद रखा है। तो फिर कैसे कहते हैं कि हम स्कूलों में नहीं जाते? हम तो स्कूलों में पढ़ाने के बाद अपना हक लेने के लिए आज एहतजाज कर रहे हैं। और आप सब वादा करें कि जब भी आपको एहतजाज की कॉल दी जाएगी या तालीमी बाइकाट की कॉल दी जाएगी या TNA के बाइकाट का ऐलान किया जाएगा तो आप इसका बाइकाट यकीनी बनाएं, क्योंकि इसी में आपकी बका है। अगर आपने ये सब काम किए तो वजीर तालीम पहले ही ये कहता है कि ये पंजाब में 2-3 हज़ार लोग हैं जो परेशान हैं, बाकी को असातिज़ा जो है हमारी पॉलिसियों से खुश है, तो इसलिए वो एहतजाजों में नहीं आते। लेकिन मैं आज के इस इज्तिमा से ये उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि लाहौर का उस्ताद जाग रहा है, सोया नहीं है। जिन तक पैगाम नहीं पहुँचा उन तक आप पैगाम पहुँचाएंगे। अगर आज 400 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला अगला इज्तिमा 2 से 3 हज़ार लोगों का होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बहनों का, अपने भाइयों का और तमाम यूनियन के अहदेदारों का, अजवर भट्टी साहब जो इंग्लिश टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हैं तो पीछे ही खड़े रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी यहाँ पर ये साबित करती है कि वो भी साझा के साथ है।